یسوع کے عظیم اور چھائی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اپنے آنکھیں بند رکھے اور ہم دعائی انداز میں میں گل خدا دی سناتا ہوں۔ میں گل خدا دی سونا گا، جب کرے گا کلام۔ میں گل خدا دی سونا گا، جب کرے گا کلام۔ یہ ہوتے آئے بندے آنا، ساروں کا نام کلام۔ یہ ہوتے آئے بندے آنا، ساروں کا نام کلام۔ گل کرے گا جو سیوا، رسول سلام کیجیے۔ گل کرے گا جو سیوا، رسول سلام کیجیے۔ پرچائیدہ ہے جو مولیے نام، اس پر پرچائیدہ ہے جو مولیے نام، اس پر اپنے سروں کو پھر سے خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی جلالی پتا، آسمانی باپ، تو جو جلال کا بادشاہ ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، تو جو ہمارے سب کچھ میں سب کچھ ہے، آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں کہ تو نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی خداوندوں کے خدا توفیق بخشی اور ہمیں برکت بخشی تاکہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے مل کر کے بیٹھے، ایک دوسرے سے سیکھیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، جبکہ میں تیرے مذبح پہ کھڑا ہوں تو میں اپنے آپ کو سراسر تیرے چھدے ہوئے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ میرے ہونٹوں زبان کا ذمہ لینا، بولنے والا میں نہ ہوں بلکہ تیرا پاک روح جو کہ لوگوں میں اثر پیدا کرے، ان تمام عزیزوں کو جو کہ تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے، یسوع کا خون کی کثرت میں فردن فردن دیتا ہوں۔ ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے دماغ تیرے قبضہ میں، تیرے کنٹرول میں، برکت عطا کر، مکاشفات کو کھولنا، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم نکاح کے تعلق سے میسیج آج کل دے رہے ہیں، لیکن یہ بڑی پرزور اپیل تھی کہ آج جناب ان میسیج کو روک کر کے ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ اور سکھایا، لہذا جو کچھ مجھے خدا نے دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم مکاشفہ کو جو کہ ہم سیکھنے کے لیے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ جب رومی حکومت نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ یوحنا مقدس یوحنا کو، جو کہ یوحنا رسول ہیں، ان کو روک دیا جائے گواہی سے، ان کو گواہی سے روکا جائے، نہیں رک سکے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان کو پتمس کے جزیرے میں، جو کہ بے آب و گیا جزیرہ تھا، پانی تو بہت تھا لیکن نمکین تھا، کیونکہ چوگرد میں سمندر تھا، اور یہاں پر تانبے کی کانیں تھیں. قیدی لوگ جو تھے وہ تانبے کی کانوں میں کام کرتے تھے. یہاں پہ کھانے کی بھی کمی تھی، آب و ہوا بھی غلیظ تھی، اور پانی بھی صحیح طور سے میسر نہیں تھا. اور مقدس رسول کو اس لیے یہاں پہ پتمس کے جزیرے میں بھیجا گیا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتمس کے جزیرے میں مر جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن وہ روح میں آ گیا، ایک دن وہ روح میں آ گیا. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا خدا کے کلام کو، تو جب ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ. کیا لکھا ملتا ہے؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کی طرف سے، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. ایک بھائی، ایک پاسٹر صاحب کلام سناتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اصل میں جی یہ مکاشفہ یوحنا کا نہیں ہے، یوحنا کا نہیں ہے. دیکھیں جی بائبل میں صاف لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ. ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ خدا کا کلام ہے. کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا. تو کیسے انکار کیا جا سکتا؟ میں نے اس خادم کو وہیں پر روکا اور میں نے کہا میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں کہ فلاں شخص کو دے دینا، اور آپ وہ 10 روپے نہیں دیتے، پیسے تو وہ میرے ہی ہیں، تو پھر وہ کس کے رہے، کس کی ملکیت میں شامل رہے؟ کہنے لگا جی میری میں. میں نے کہا یہ مکاشفہ جو ہے ملکیت یسوع کی ہے، اور اس نے یوحنا کو دیا. اس نے کس کو دیا؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا. اور اگر یوحنا ہم تک نہ پہنچاتا تو کیا ہم اس مکاشفے کو جان سکتے تھے؟ نہیں جان سکتے. لہذا یہ مکاشفہ یوحنا کا بھی ہے، اور یوحنا کو جو تلقین ہوئی کہ اس کو کیا کر بھیج دے، اس کو کیا کر بھیج دے، تو بات یہ ہے کہ اگر یوحنا نہ بھیجتا تو یہ اس کی ملکیت ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے بھیجا، 7 کلیسیاؤں کو بھیجا، 7 کلیسیاؤں کو بھیجا. اور علماء کہتے ہیں یہ 81 سے 96 عیسوی کے درمیان کا یہ وقوع ہے. اس کے درمیان میں یہ لکھا گیا. اور ڈومیٹین کیسر تھا جس کے دور میں اس کو پتمس کے جزیرے میں بھیجا گیا، اور یوحنا کا روح میں آنے کا مقصد یہ پیش کرتا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور بادشاہوں کا
یہ ہے سب سے پہلے جو بات ہمیں یہاں پہ آج اس آیت میں ہمیں زور دینا ہے پچھلی 2 آیتوں کو چھوڑ کر کے، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ یسوع کا ہے، پھر یہ فرشتے کا ہے، پھر یہ یوحنا کا ہے، پھر یہ 7 کلیسیاؤں کا ہے، اور آج یہ مکاشفہ میرا اور آپ کا ہے۔ اگر ہم یہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارا ہی رہا نا کیا یہ مکاشفہ ہمارا ہے۔ اور تیسری آیت کہتی ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھنے والے مبارک ہیں۔ بھائی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو۔ ایک شخص قیدی ہے، اس نے لکھنے کا میٹیریل کیسے لیا، پھر اس میٹیریل کو 7 کلیسیوں میں جو اس وقت ترکی میں تھی 7 کلیسیوں کو بھیجا۔ کس طرح سے بھیجا ہوگا؟ قیدیوں کی ڈاک میں بھیجا ہوگا، قیدیوں کی ڈاک میں بھیجا ہوگا، یا تو بھائی سے ملنے آئے یا اس کے وسیلہ سے بھیجا ہوگا۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ یا اس نے کسی جہاز ران سے دوستی کر کے اس کے وسیلہ یہ بھیجا۔ یعنی کہ آپ پہلے اس مشکل کا اندازہ لگائیں کہ اس نے کیسے بھیجا، اور چونکہ یہ خدا کا مکاشفہ تھا اسے لوگوں تک پہنچنا ضرور۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جڑا مکاشفہ بڑے پاگل ہو جاتا ہے، یہ نہیں پتا پاگل کا پتر ہوں پہلے ہی، وہ تو اس کے اوپر چلے بازی کر رہا ہوتا ہے، جادو میں اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب باتوں میں اس کی وجہ سے آتی ہے، جب اس کو الٹا استعمال کرتا ہے، بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے پھر پاگل، پھر مکاشفہ نہ پڑھو پاگل ہو جائے۔ مجھے تو پھر کتنی دفعہ پاگل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ مکاشفہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا مبارک، پڑھنا ہی مبارک، پھر سننے والے، پڑھنے والا صیغہ واحد ہے، سننے والے صیغہ جمع ہے۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ مبارک ہے، پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے تو پھر مبارک ہے، اگر نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے؟ پھر لعنتی ہے۔ یہ بات تو پکی ہے نا، پھر مبارک کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو خدا اپنی رحمت سے نوازے، جس کو برکت، یہی بات ہے۔ اور خوشی ہوتی ہے، اس سے برکت وہی ہوتی ہے نا جس کو ہم خوشی کہتے ہیں، جس کو خوشی آتی ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر برکت کی بجائے، خوشی کی بجائے پریشانی آ جائے، غضب آ جائے، غضب کی موت آ جائے، تو یہ لعنت ہے یا کہ نہیں؟ لعنت ہے نا۔ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھتا لعنتی ہے۔ سن سکتا ہے، سن سکتا ہے، خدا نے کان دیے ہیں، نہیں سنتا، سنتا ہے تو مبارک ہے، نہیں سنتا ہے تو لعنتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو بات لکھی ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک، اس پر کیا کرنے والے؟ عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اگر پڑھ بھی لیا ٹھیک ہے، مبارک تو ہو گیا، سن لیا مبارک ہو گیا، عمل نہیں کیا پھر بھی مبارک، عمل نہیں کیا پھر بھی
मुबारक नहीं। तो बात ये है कि हमें ये नबूवत की किताब को क्यों पढ़ना है? सवाल ये पैदा होगा, क्यों हमें इसको पढ़ना है? क्या किसी के पास इसका कोई जवाब है? बताएं मुझे, क्यों पढ़ना है? वाजिब है। ओ भाइयों, इस नबूवत की किताब को पढ़कर जान क्या लिया आपने? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला इसलिए मुबारक है कि नबूवतें पूरी हो रही हैं, और नबूवतें जो कि पूरी हो रही हैं वो उन पूरी होती नबूवतों को समझ रहा है। क्या कर रहा है? समझ रहा है, और समझ करके लोगों को आगाह कर रहा है, समझ करके लोगों को आगाह कर रहा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी पेशनगोइयां जो कि मुकाशफा में हैं वो पूरी हो रही। जैसे कि हमारे सामने दूसरी तलावत हमारे भाई आइज़क ने मेरा ख्याल किया, और उसमें क्या था, क्या पढ़ा था जी आपने? मुकाशफा 6 बाब की 3 और 4 आयत में क्या पढ़ा? घोड़ा था, एक निकला, क्या पढ़ा था जी? लाल घोड़ा। सुलह को उसने क्या किया? जंगो जदल हो गई, कत्लो गालित हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए। जरा निकाले मत्ती की इंजील के 24 बाब की तरह 7 आयत को, वहां पे लिखा है कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। पढ़ो पढ़े, पढ़ो मत्ती 24 की 7। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह कान पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये है मुसीबतों का शुरू। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनतें चढ़ाई कर रही हैं, हो रही है, ठीक है जी। और आगे क्या लिखा है? जगह जगह कान पड़ेंगे, कान भी पड़ रहे हैं, भूचाल भी बड़ी शिद्दत से आ रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ आप टीवी में देखते हो, फलां मुल्क में आ गया, 8 सरहद में आ गया, पंजाब में आ गया, इंडिया में आ गया, अमेरिका में आ गया, सिसिली में, चिली में, इटली में, पता नहीं कहाँ पे आप भूचाल के बारे में पढ़ते हो। और फिर आप अगर लूका की इंजील के 17 बाब की 26 आयत को पढ़े तो फिर वहां पर भी एक बहुत बड़ी पेशगोई के ताल्लुक से यही बात लिखी है। लूका की इंजील उसके 17 बाब की पढ़े जरा 26 आयत। तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए। मैंने अर्ज किया था, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और पढ़ दिए जैसा नूह के दिनों में, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। जिसको मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए, जो पढ़ना चाहता है जल्दबाजी से काम ना लेकर के गलत आयत ना पढ़े, मैं उसकी मेहनत करता हूँ। ये मेहरबानी होगी, ठीक है जी। तो बात ये है, लिखा है 26 आयत में जैसा नूह के दिनों में हुआ। जैसा किसके दिनों में हुआ? नूह के दिनों में क्या हुआ था? सवाल ये पैदा होता है, नूह के दिनों में क्या हुआ था?
तूफान से पहले की बात है। बदकारी बढ़ गई, बदकारी बढ़ गई। आदम की बेटियों को खुदा के बेटों ने, इब्रानी में इनके लिए लफ्ज नफलीम आया है, और ये नफलीम वो गिराए हुए फरिश्ते थे जो जिस्म रखते थे। अगर जिस्म ना इनके होते तो ये आदम की बेटियों से शादी करने के मजाज ही नहीं थे। यही बात है ना, इन्होंने गिराए हुए फरिश्तों ने शादियां क्या किया? शादियां। और किनसे की? आदम की बेटी। किनसे की? आदम की बेटी। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। उनमें क्या होता था? बढ़िया खुशियां, बड़ी बात है, फलाने की शादियां, मेहंदी निकल गई, पता नहीं केड़े केड़े टोटके हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। वो सारी देवी देवताओं वाली पूरी स्टोरियां जो है वो जनाब दोहराई जाती हैं। वो जो नफलीम गिरे थे ना, कोई राम बन गया, कोई चंद्र बन गया, कोई पता नहीं कौन बन गया, कोई क्या बन गया, और जनाब उन्होंने आकर के जमीन के ऊपर आकर के दो पार्टियां बना ली, एक काले इल्म वाले, एक नूरी इल्म वाले। नूरी वाले कहने लगे हम खुदा है, हम परमाश्वर वगैरह वगैरह ये सब कुछ ये क्या थे, खुदा का होने का दावा करते थे ना। और हमारी काली को मारने वाले, खून पीने वाले, ये भी काले इल्म वाले हैं। और इन्होंने अपनी इस बात से असल खुदा के चेहरे को ढांकने की कोशिश की। असल खुदा के चेहरे को क्या किया? ढांकने की कोशिश की। और ये देख लो, ये हल्दी की रस्म है, ये मेहंदी की रस्म है, ये तेल की रस्म है, ये फलाने की रस्म है, ये टीके की रस्म है, ये सारी चीजें उन देवी देवताओं ने आकर के मुतारफ कराई। और हम आज तक इनमें फंसे हुए हैं, हम आज तक इनमें फंसे हुए हैं। और नूह को मजाक किया जाता रहा। मेसोपोटामिया में मौजूदा तुर्की, अरारात का पहाड़ भी वहां पे इतनी ऊंची जगह थे, कितने तूफान कौन है। आज भी जब लोगों को बताते हैं कि यीशु भटकी आपके साथ आने वाला है, और जब बड़ी देर से दुनिया कायम है। यीशु ने बड़ी देर पहले कहा था आने के लिए, आया नहीं। और अगला हिस्सा भी पढ़ो, अगली बातें भी पढ़ो। उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ, तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते, दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सुदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। लूत के दिनों में क्या होता था? लूत के दिनों में बदकारी, होमोसेक्सुअल आम थी। आज अमेरिका ने, बहुत सारे मुल्कों ने इस कानून को लड़के लड़की जो है, और लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ निकाह कर सकती है, इसको बना दिया। और मेरे जैसे बड़ों ने लिखा है कि अगर सुदूम तबाह हो सकता तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा। कौन साहब ने इजाजत दे दी थी, और पता चला कि उसके कार्डिनल जो थे, तो उसकी जो सेक्रेटरी जो थी, वो कई सालों से आपस में रह रहे थे। अखबारों में आता रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा। लूत के दिनों में लूत की बेटियों ने क्या किया? बाप और बेटी के साथ का ज़िना, बाप और बेटी का
जिना, क्या मैं बताऊं क्या कुछ होता था लूट के दिनों में, लूट के दिनों में। और ये मेरी बात को सुन लो। और क्या था, साइंस उस वक्त भी बड़े जोर के ऊपर थी, आगे नई साइंस नहीं निकली। जैसा लूट के दिनों में हुआ था, वो के लोग खाते पीते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, दरख्त लगाते थे। आजकल विश्वविद्यालय के महीने साइंस बात है, बाइबल को पढ़े तो वहां पे नफ्त के गड़े थे, वहां पे नफ्त के गड़े थे। अक्लमंद उस वक्त भी मौजूद थे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि जोन में जो है वो सुराख हो गया, उसकी तह जो है वो हट गई। उस वक्त किसी को नहीं पता था। और नफ्त क्या है, राल और तेल का गारा। तालाब थे बने हुए, तेल और राल की बदबू उठती थी, और दरख्त लगाते थे पोल्यूशन को दूर करने के लिए कि ये बदबू को सोख लेते हैं, ये समेट लेते हैं। यही बात है ना। आज भी शजरकारी की मुहिमें, क्यों जी? ओजोन गैस जो है जी, जिससे ऑक्सीजन बनती है। और ओजोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा वायलेट, अल्फा रेड रेजेस को, जो कि जमीन पर अगर पूरी मिकदार में आ जाए सूरज में से निकल करके, ना रंग रहे ना बू रहे। यही वजह है धूप में कपड़े डालने से उनके रंग उठता है। बात की समझ आ रही है? और साइंसदान हर बात में फेल होते जा रहे हैं। बड़े बड़े तरीके आजमाए और आखिरकार इस बात के ऊपर पहुंचे कि यार ये जो दरख्त है ना, ये कुदरती एक अमर है कि ये पोल्यूशन को दूर करता है। और मैंने ये मैसेज 1979 में एक जगह पे दिया था। ये मैसेज 1979 में, उस वक्त मैंने ये पेशन गोई की थी कि आसमान में वो हिस्सा जिसको ओजोन कहते हैं, उसमें सुराख हो चुका है। और ये नबूती बात थी, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था ना मुझे उस वक्त पर लिटरेचर मुहैया था। और एक लड़का था, 48 का लड़का था, जावेद उसका नाम। उस वक्त वो BSE कर रहा। इसके बाद वो चाइना चला गया। उसने मुझे उठ करके कहा जी बहुत इल्म ने भी तो पागल कर। उस वक्त उसने मुझे ये कहा ज्यादा इल्म ने आपको अंकल जी पागल कर दिया है। और मैंने उस वक्त क्या कहा था? मैंने कहा था कि सुराख की वजह से जमीन पर इंफ्रावायलेट रेड रेजेस आ रही हैं, ये कैंसर का बायस बन रही हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियां, ये जो नशीली बूटियां तुम खाते हो, ये ज्यादा इसको जज़ब करती हैं। और जब तुम इन्हें अपने अंदर लेते हो तो ये तुम्हारे अंदर कैंसर का बायस होती है। तो उन्हें आखा जी तुसी ही बहुत इल्म दे जो तुम पागल हो, एक किवें हो सकता। और जब 1990 में अखबारों में साइंसदानों ने दिया आओ इस दुनिया को, इस प्लेनेट को, इस सियारे को बचाएं, और तुम्हारा नवाज शरीफ भी उस कॉन्फ्रेंस में गया था। उस वक्त तो चाइना में था। चाइना से आकर के उसने मुझसे माफी मांगी थी कितने सालों बाद कि मैंने उस वक्त ये कहा था मैं माफी चाहता हूं। आज हम ये सब कुछ कह रहे हैं, लोग की पता नबी की नबी को बंदा नहीं होंगे, जिसम नहीं होंगे, नहीं खांदा, फुजले नहीं निकलते, बिलत इंसानी की बिलत नहीं होंगे।
होतियां ने कि नहीं? और हम नबी को भी उसी हिसाब के चादर फलानी जगह तो मैंने मिले तो 5 मतलब जो प्लेट ही खा गया खाओ पेट टूट। हम नबी को भी उसी तवाज़ुन में तोलते रहते हैं। इंसान होते हुए कई ऐसी जुबिलते हैं तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन यार जो बात वो कहता है उसको देखो, उसको परखो। बाइबल कहती है नबूतों की हकारत, इन नबियों को आजमाओ, नबियों को आजमाओ। आजमाने की बजाय तुम कहते हो तो पागल हो गया। और मैं ये कह रहा हूं तुम्हें, यीशु के नाम से ये मैं बात कह रहा हूं, सेम सिचुएशन आज जा रही है, सेम चीज। इसलिए इसको पढ़ना है नबूवत की किताब को, पेशन गोइयां पूरी हो गई। क्या कहा सरसन है? पेशन गोइयां पूरी हो। पेशन गोइयां पूरी, क्या पेशन गोइयां पूरी हो। तूफान से पहले भी लोग बड़े खुश बाश, बंदे को बंदा ही नहीं समझते हैं। साड़ी भैन से एकदम चल मैं इधर होना मुद्दा लगा सानू अग्गा पीछे पूछने की कहीं जरूरत है। मेरी बात की समझ आई ना? आज हम नशेबाजों के घरों में, नशेबाजों के साथ, उनके बच्चों के साथ बेटियां ब्याह करके थी तो काट। समझ आई? बाद लोग कलाम सुनते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों में कलाम चल रहा था निकाह किताब, ये सुदूम और उमरा की बातें आपने सुनी, तो कई लोग समझे कलाम के सुना रहे ही है दो गले नहीं फलाने ने नहीं किया उदो नहीं से लड़ाई नहीं उन्होंने बासमा क्यों दस। ये भी सोचे हो, मुझे ये बताओ, मैं गैर नहीं हूं, यह कलम तो सिर्फ खुदा को है। नबी था या को नबी था या कि नहीं? खुदा बोलता था उससे या कि नहीं? फरिश्ते उसके पास आते थे या कि नहीं? फरिश्ते उन्होंने बोलता था, लेकिन बेटे को पकड़ करके बेच दिया। ये उसे पता नहीं चला, ये उसे पता। और अगर आज कोई जिसने प्लीज कोई गुनाह किया हो, बीवी चोरी हो या किसी ने कानून छोड़ा हो और वो तौबा करके हमारे पास आता है, तो मुझे ये बताओ, अगर वो तौबा करता है तो खुद ही इसका अंदाजा लगाओ कि क्या हमें उसको वापस में देना चाहिए? देना चाहिए। हाँ, उस शख्स के मैं खिलाफ हूं जिस तरह से जनाब वो यासर साहब आजकल फिर पादरी बने हुए हैं। पादर पुणे में किसी की बहू निकाल करके ले जाना और फिर आकर के पादरी बन जाना, ऐसे लोगों का गुनाह नाकाबिले माफ है। लेकिन जिस शख्स ने पता ही नहीं उसको कलाम का, उसने गुनाह कर लिया और वो आकर के तौबा के लिए गिड़गिड़ाया तो मैं तौबा करता हूँ, मुझे बैठुमा दो, तो मैं बैठुमा देता हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं मुजरिम हूँ? समझो इस गल भी टीसी बड़ी करते हैं ना, इन चंगा चंगा भी बड़ा देंगे, कमाते बड़ा काम भाव समझते, ये अन्ना सी इन्हों नहीं पता इंसानी साहब की मैं तो है ना। कलाम की क्या हो गई? हकारत हो गई। कलाम की क्या हुई? हकारत हो गई। और इसकी हकारत करने वाले उनका बख्श नामुमकिन है। जो मेरी बात को सुन लो, पानी तो लबादा चाड़े हुए चंगा भला पेशेंगुनियां पूरी हो रही हैं। औरतों को देखो, उनके सुर्खी पाउडर को देखो, ब्यूटी पार्लर बन गए हैं। नकाब उन्हें पैसे नकाब में नहीं देने, 35,000 रुपया ब्यूटी पार्लर वाली को दे देना, को तो तकलीफ नहीं होगी।
पैंदी है जो 10,000 या 4,000 पादरी मंगते हैं इतनी फीस। मैं गलत कह रहा हूं ना, ये सही नहीं है। पेशन गोइयां पूरी, पेशन गोइयां पूरी हो गई। जरा पढ़ेगा ना, इंसान 13 की 13 को पढ़े, पढ़े पढ़े इंसान 13 की 13। रिजवान साहब बाइबल लेकर के आए हैं, ड्यूटी दे पढ़े जी। इंसान 13 की 13। अंदर जाओ, मेरी बड़ी बाइबल लेके आओ, अंदर जाओ, मेरी बड़ी बाइबल चुक ले आओ। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने आप पर क्या लाता है? हलाकत लाता है। और बाइबल ये कहती है इंसान ही में जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता उस पर खुदा की। तो मैं ये कह रहा था पेशेंटियां पूरी हुई। मत्ती 24 की 34 को पढ़े, यीशु ने क्या कहा था? ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। कहा था? पढ़ो तो पढ़ो। 24 बाब की 34 है। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। जब तक ये सब बातें ना हुए ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। तो उनकी जो नस्ल है ना, जरा अयूब निकाले, अयूब निकाले फटाफट करो, फटाफट करो। आखिरी बाब अयूब का, अयूब का आखिरी बाब मिल गया। यहां पे लिखा है 16वीं आयत है आखिरी बाब की। इसके बाद अयूब 140 वर्ष जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथी पुस्तक देखे। 140 को 4 के ऊपर तकसीम करो, 4 दिए 12, 4 पंजे 35। 35 से 40 साल की उनकी पुस्तक दौरानियां है। 35 से 40 साल उनकी पुस्तक। हाँ, तो ये मेरी बात को सुन लो। यूसुफ जिस वक्त इक़्तिदार को पहुंचा उसकी उम्र तख्त नशीनी के वक्त पैदाइश 41 बाब में लिखा है कि वो 30 वर्ष का था जब हुकूमत करने सल्तनत को पहुंचा। दाऊद के बारे में दूसरा शमूएल के मैं हवाले पढ़ाऊंगा तो ये बड़ा लंबा हो जाए। दाऊद दूसरा शमूएल 5 बाब की 4 आयत में जब तक वो पहुंचा तो 30 वर्ष का था। और मसीह जो है मुनादी शुरू करता है तो 30 साल की उम्र में करता है। कौन सी उम्र में? 30 साल की उम्र। 30 साल की उम्र में। अब जनाब इसराइल जो है 1947 में ये नौ आबादी बसी। 1900 किस में? मैंने क्या कहा? 1947 में। 1947 में नौ आबादी बसते ही इन्होंने एप्लीकेशन दे दी यूएनओ, और यूएनओ ने इनको दुनिया के नक्शे को पर एक आजाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। और 14 मई 1948 को पहली ताजपोशी की रस्म। कितनी? पहली ताजपोशी की रस्म। तो 30 साल एक नस्ल के लिए मैंने बताए हैं ना। 30 साल काउंट कर रहे हैं ना, 30 इसमें जमा करो, 78 बने। 78 बनते हैं कि नहीं? यानी कि दोबारा बहाली जो है
1978 में इसकी हो चुकी है। समझ में आ गई है ना मेरी बात? नहीं आ रही ना? आ गई होगी। अब जनाब ये सारी बातें होनी है, फिर ये नस्ल ने तमाम होना है। वहां पे पुष्ट नहीं लिखा, पुष्ट। जब हम अयूब को पढ़ते हैं तो पुष्ट लिखा है, पुष्ट, चौथी पुष्ट तक देखे लोग की ऐसे गल लैके ती रौला पाते हैं। 30 उनका मेच्योरिटी का स्टैंडर्ड है। उनकी लड़की 25 साल की होगी और लड़का 30 साल का होगा, तब वो शादी करे। ऐवे नहीं कि साढ़े वांगू जनाब अली दौड़े पै गए, भाई लारन जनाब दौड़े पै गया, और यार कुड़ी 18 साल की हो गई, यार देखी यार वारिस भी यही यार कितने रिश्ता, मैं परेशान। मच्योर नहीं है वो बाइबल के कानून के मुताबिक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रब्बी भी 30 साल से पहले नहीं बन सकता था। 12 साल से पहले कोई लड़का रब्बियों से सवाल नहीं कर सकता था। 12 साल तक वो ये जो तो रेत है इसको हिफज करते थे। हिफज करना मुसलमानों ने ना कौन से किया। 12 साल के बाद तालीम हासिल करते 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 जब 30 साल की उम्र को होता था तो रब्बी कहलाता था। पुष्ट नहीं लिखी, नस्ल ये नहीं लिखा कि ये उनकी जनाब ये 30 साल एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया। पुष्ट का स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं हुआ। ये मेरी बात को सुन लो। अब मैं आपसे कर देना चाहता हूं, वहां लिखा है ये पुष्ट हरगिज़ तमाम ना होगी जब तक ये सारी बातें पूरी। तो पूरी क्या होनी है? रूस की चढ़ाई 38 बार 15वीं आयत में रूस इनका लीडर होगा, रूस इनका लीडर होगा। सारे मुस्लिम ममालिक इनके साथ होंगे और ये उसके मुखालिफ जाएंगे। इससे पहले वो जो 10 सींग हैं, वो हैवान जो है जिसके 7 सर हैं, जिसके 7 सर हैं, वो इनको हैकल बनवा करके देगा। वो इनको हैकल बनवा करके देगा। और जब इनको हैकल बनवा करके इजाजत देना तो बकरी गल खुद बनवा के देगा। ये गल ये सुनिया कीजिए कि मैं बाप के नाम से आया हूं तो मुझे कबूल नहीं करते, अगर वो अपने ही नाम से आए तो मुझे कबूल कर दो। और इसराइली आदि कह रहे नहीं, मसीहानिक इसराइलियों की मैं बात कर रहा हूं जिनसे मेरी बात होती है। तो ऐसा मुश्तान है कल बना दिया उन बयान के वो साडा बादशाह ही हैकल पीछे मरंडे और प्लीज दो फजन दो। हैकल बड़ी है, ये हैकल वाला बड़ा है, उसके पीछे तो तुम पढ़ते नहीं। और हमने इनको हैकल बनवा करके देनी है। ये हैवान जो है वहां पर आ करके कहने लगा है। और फिर 3.5 साल के बाद अपने बुत को वहां पे नस्ल करेगा, इनको परस्तिश करने का हुक्म देगा। परस्तिश ना करने की वजह से इनको कत्ल करेगा। इधर से जनाब शमाली बादशाह जो हैं, मशरकी बादशाह जिनका ये मुकाशा में जिक्र है, ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। ये जो इराक में दरे फरात का सूखना जो है ये 1980 या 85 में हो चुका है। उन्होंने इसके असल बेड को खुश्क करके डैम बना करके वहां से 7 नाले शुरू कर दिए। 7 वहां से नहरें निकल गई हैं। ये साया यार में बात जरा 15-16 पढ़ो, पढ़े जरा। ये साया 11 बाब की 15 और 16।
तब खुदावंद बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त कर देगा और अपनी वादे समूह से उतने मुंह करो। ये बहरे मिस्र की खलीज क्या है भाई, क्या है और बताइए, नहीं पता। मैं दसना, ये मेरी बात को बड़े गौर से सुनो। इस तरह से वो गलील जेल नहीं बनी थी, इधर अकबा खलीज अकबा, इधर खलीज सुवेज, खलीज सुवेज है ना, और आगे से एक हो जाते हैं। और ये जो खलीज सुवेज है इसका लिंक था, ये समुंदर जो है मेडिटेरियन सी जो है इसके साथ था। इन्होंने क्या किया, उस छोटे से रास्ते को काट करके, बहरे कुलजुम वाले को काट करके उसे बहुत बड़ा बना लिया जहाज रानी के लिए। जहाज रानी के लिए मुझे उठे रहे हैं, तेन इन्हें नहीं पता, सऊदी अरब रहे हैं, काबिल नहीं रहा जिनको कहीं ऐज ही नहीं सी लिखना। इन्होंने उसको खलीज बड़ी कर ली, नहर सुएज बना ली, नहर सुएज इतनी बड़ी नहर कि उसमें जहाज रानी होती है, होती थी। लेकिन कर्नल कज़ाफ़ी ने इसको तबाह कर दिया। किसने इसको तबाह किया? कर्नल कज़ाफ़ी ने इसको तबाह किया। और यहाँ पे लिखा है तब खुदावंद बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त कर देगा। अब इसमें तबाही क्या हुई कि उसने जहाज डूब दिया, उसने जहाज डुबो दिया। अब उसमें से जहाज रानी नहीं हो सकती, तबाह हो गई। ये अखबारों में आया, मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में आया, ये पेशगोई पूरी हो गई। और यहाँ पे लिखा है 14वीं आयत में लिखा है वो मगरब की तरफ फलस्तीन के कंधों पर झपटेंगे, इन्हें चपटे ने फलस्तीनी के नासा बंद कर। मगरब वाले पासे था ना समुंदर, मशरक की तरफ हम है ना, हमारे मुल्क अरब और ये जो जितना भी ईरान, इराक, ये पाकिस्तान, इंडिया, ये असम, बर्मा, लंका, क्यों जी ये मशरक की तरफ है ना इलाके, ये मशरक की इलाके हैं। तो रशिया इन मशरक वालों का हो जाएगा जनाब लीडर। और आगे क्या लिखा है, अपनी बातें सुमूम से जाहिर बात है जब बंद बनाए जाते हैं, असल बेड को खुश्क करने के लिए केमिकल फेंके जाते हैं ताकि वेपोरेशन हो, वेपोरेट हो, क्या उसको कहते हैं, अम्ल तबखीर होता है। और पानी जो है केमिकल जो है इतना वो अम्ल तबखीर होता है कि पानी सूख जाता है, पानी उड़ जाता है। बातें सुमूम जहरीली हवाएं वो होती हैं, लेकिन अपनी बातें सुमूम से दरे फरात पर हाथ चलाएगा, उसको साथ नाले कर देगा। क्लीन का भरा जो थे जाके मजदूरी करके आया सलीम। तो बात समझने की है, क्यों हुआ ऐसा करेगा कि लोग जूते पहने हुए बाहर चले जाएंगे और उसके बाकी लोगों के लिए जो सूर से बच रहेंगे। एक ऐसी इशारा होगी जैसी बनी इसराइल कहती थी जब वो मुल्क मिस्र से निकले, और ये पेशगोई भी पूरी हो गई। क्यों अनवर सादात क्यों कत्ल हुआ? अनवर सादात इसलिए कत्ल हुआ, जाहिर बात है इधर सूर है इधर मिस्र है। अगर बीच में इसराइल से समझौता नहीं होता तो क्या वो गुजरने देगा इनको? ये गुजर सकेंगे? ये समझौता किया था अनवर सादात ने इसराइल से कि हमने असूर में जाना है, आपसे भी हम जनाब तजारत करेंगे, असूरियों से भी हम तजारत करेंगे, असूरियों से भी हम तजारत करेंगे। और ये समझौता किया था जिसकी पादाश में परेड के वक्त जब वो सलामी ले रहा था अनवर सादात, उसको फौजी ने गोली मारी। उसको किसने गोली मारी? तो ये पेशगोइयां तो पूरी होती जा रही है। नबूवत की किताब को क्यों पढ़ना है?
मैं कितनी पेशन गोइयां आपको बताऊं, पेशन गोइयां पूरी हो रही है। और इसलिए वो कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले, इसलिए मुबारक है ताकि वो तौबा करके खुदा को, ताकि वो तौबा करके किसकी तरफ आ जाए, खुदा की तरफ आ जाए। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, लोग ये समझते हैं कि जी असी इसराइल को तबाह कर देना, हरगिज़ नहीं। ये अबलीस के फज़ाद ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी बात को सुन लो, यिर्मयाह 31 की तरह 31 से 40 आप पढ़ो, इसराइल की शिकस्त नामुमकिन है। और पढ़े जरा, यिर्मयाह 31 की, हाँ मैंने क्या कहा था, 31 से 40। देखो वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया आहद बांधूंगा, उस आहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस आहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदा फरमाता है, बल्कि ये वो आहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावन को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावन फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। खुदावन जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समंदर को मौजज़न करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती है, यूं फरमाता है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। खुदा फरमाता है, अगर ये तक मैं आके खुदा फरमाता है, अगर ये निज़ाम मेरे हजूर से मौकूफ हो जाए, अगर ये निज़ाम मेरे हजूर से, सूरज चांद सितारों का निज़ाम मेरे हजूर से मौकूफ हो जाए, तो इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी। इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी। तो फिर इन्हें शिकस्त देनी, चाचे लाके जितनी शिकस्त दे, जितनियां खाओगे। पढ़े, आगे भी पढ़े कि हमेशा तक फिर कौम ना हो। खुदा यूं फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सकता है और नीचे जमीन की बुनियाद का पता लगा दे, तो मैं किसी ने पता लगाया आज तक कि जमीन की बुनियाद की क्या मतलब लंबाई चौड़ाई है। हाँ आगे, तो मैं भी बनी इसराइल को उनके सब अमाल के सबब से रद्द कर दूंगा। खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि ये शहर हननेल के बुर्ज से कोने के फाटक तक खुदावन के लिए तामीर किया जाएगा, और ये तामीर हो चुका है, और ये तामीर हो चुका है। बड़ा हैरान पाटे खा मर मैं इसराइल मार देना, तू आपे मर जाना के। ये दाइश सारी इसी बात की तो होंगे, ये देवबंदी सारे इसीलिए ये कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये चांद सूरज सितारों का निजाम जब तक तबाह नहीं, इसराइल को कोई तबाह कर सकता है? अगर कोई ऊपर आसमान नीचे जमीन की बुनियाद को मालूम कर लेता है, तो फिर कहता फिर हाँ हो सकता, मैं वो कर सकता। कोई बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, किसी ने कुछ किया? मिस्र और इसराइल का समझौता हुआ, दरिया फरात, खलीज मिस्र तबाह हो गया, पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। इसराइली मगरब ने फिलिस्तीनियों के कंधों पर झपट झपट करके इन्होंने उनको चुप करा दिया है।
बड़ा शोर पाते हैं ना आजकल, सिर्फ कश्मीर का शोर है, बड़ा भी शोर पैदा है। यासर अरफात मर गया, खत्म हो गया शोर। तो बात ये है, पेशंगुड़ियाँ पूरी हो रही हैं। पैदाइश 27 से 29 को 2 आयतों को पढ़े। यकूब की बरकत, यकूब ने इनको बरकत दी। यकूब ने इनको क्या किया? बरकत दी। और इसराइल का फतह होना नामुमकिन है। बाइबल कहती है कि ये तमाम कौमों को खा जाएंगे। ज़करिया 12वें बाब को पढ़े, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, ये सब कौमों को खा जाएंगे। पढ़ो जरा ज़करिया को। सारी बातें अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, आज इसके लिए स्टडी लेनी है तो किसी अलग वक्त पे आना, मैं सारी पेशन मुझे लिखवा दूँगा। पढ़ो ज़करिया 12 शुरू से पढ़ लूँ। इसराइल की बाबत खुदावन की तरफ से बारे नबूवत। खुदावन जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता, यूं घुमाता है, देख मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बना दूं। यही बात है ना, सारे कह रहे हैं हाँ तो बात कर सकते, ऐसा खत्म कर सकते। इसराइल रहेगा ही नहीं थी दुनिया में। ये मुंह न कहेंगे तो नहीं हो सकता। और यरूशलेम के महासरे वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए भारी पत्थर बना दूंगा, जो उसे उठाएंगे सब घायल हो जाएंगे। घायल का मतलब जख्मी। जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगे। वहां से हवान आकर के उनको चेज करेगा, इधर से ये मशरक के बादशाह रशिया की सरबराही में जाएंगे उसको तबाह करने के लिए। और मैं इसको चाहता हूँ, क्या टाइम हुआ है? कितना घंटे में? फिर मैं करना। तो बात ये है, मैं ये असल में 2-3 घंटे का मैसेज है। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर बड़े लोगों के बड़ा, डैनियल ने भी पेशन वही की थी कि दानिश फजूल होगी, दानिश अफजूल होगी। और बाइबल कहती है देख मैं जल्द बादलों पर आने वाला, कहती है ना, और उसके लिए तैयारियां भी हो रही। जब ये हैवान सुनेगा कि मशरक के बादशाह इन्हों में तकलीफ होनी है, इन्हों की तकलीफ है कि जो बना के देती है वो तो साड़ी मस्जिद अक्सा है, इनको ये तकलीफ है, ये रशिया की सरबराही में जा रहे हैं। हैवान परेशान हो जाएगा, ये मेरे चेले सन, ये मेरे खिलाफ ये आगे, ये मेरे मुखालिफ हो के आगे हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी से रिमाइंड कर रहा हूं। और अपनी ये दानियल को पढ़ो, अपनी फौजों को मुनज़्ज़म करके ये निकलेगा उसके इस्तक़बाल के लिए, मिलने के लिए, इन फौजों के सरबराह से मिलने के लिए। जैसे ही ये आमने सामने आएंगे, हैं तो ये एक दूसरे के दुश्मन, हैं तो ये एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन उसी वक्त आसमान के बादलों पर यीशु को गाता हुआ देखें। यही वो वक्त होगा जब इब्ने आदम का निशान आसमान में दिखाई देगा। जंग इन्हीं के लड़ चुकी होनी है। एटमा में चलने वाली एटमा बाद फेसबुक पे रुकी मार रहे हैं कि अगर ये हमला हो जाए तो नहीं करे। और जब एटम चलता है, ये अल्फा बीटा गामा रेज़ निकलती हैं, ये तुम्हारा बिजली का निजाम फेल, ये फेल हो जाएंगे, मोबाइल फेल हो जाएंगे, कोई टीवी नहीं देखेगा, चलने कुछ नहीं, किसी को किसी का पता नहीं होगा क्या हो गया, कहाँ है क्या है। और इन धमाकों की वजह से सूरज तबाह हो चुका होगा, जमीन के ऊपर अंधेरा हो चुका, जमीन के ऊपर हाँ
ये 1965 की बात है जब अखबार में आया था कि सिर्फ पाकिस्तान के पास इतना असला कि एक जगह जमा करके अगर इसको जो है वो बस्ट किया जाए ना तो इतनी बड़ी बड़ी 70 जमीनें जो है तबाह हो सकती हैं एकदम। अखबार की सूखी थी तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के पास ये असला है? अमेरिका के पास नहीं, रशिया के पास नहीं, जर्मनी जापान के पास नहीं है, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, अजरबैजान, ये जो उज़्बेकिस्तान, ये जितनी भी सल्तनतें हैं, ये इंडिया जो है तुम्हारा, इसके पास नहीं है। यस्सु की आमद पर ये जमीन दो टुकड़े वो है ज़ातून फट जाएगा मशरक से मगरब। बड़ी बात। लोग जो तहखानों में छुपे होंगे उनको पता होगा सूरज तो तबाह हो गया, जमीन भी तबाह हो गई। जब यीशु आएगा तो उसके चेहरे के नूर से रोशनी निकलेगी। ये उस रोशनी को देखने की बात, ये उस रोशनी को देखने के लिए सूरज से तबाह हो गए कि ये है अमेरिका ने को नमा देनी सूरज का जरा देनी अमेरिका की कड़ी जरूरत है। होमोसेक्सुअल मुल्क तबाह हो जाएगा। समझ आ रही है? और उसको जब सूर्य ये रोशनी को देखने के लिए बाहर आएंगे अपनी रस्मगाहों से, जमीन के नीचे तकरीबन 65-60 फुट 10-10 फुट वाले जो होंगे जमीन से